I'm Dr. Tanu. We have a very special episode today on gut health by P-Chex brand. And today we're going to talk about everything in gut health, mental health, gut feeling, immunity. So we have a very renowned gastroenterologist with us, Dr. Kapil, who is heading the department at Sarvodaya Hospital, Faridabad. He has a decade over experience. He would tell you everything about gut health. Thank you, Dr. Tannu, for kind invitation and the kind word. Thank you. And regarding the gut health, you can say gut health is overall health. You can compare with the overall body health. So you can understand the gut. It's a magical factory inside your body, and then it process your food. Once the process has been food, it get absorbed, give you energy, and because gut has so many good bacteria inside, and it is the most strong immune system in the body which check everything whatever you eat, and it check, and it doesn't allow any pathogenic and harmful thing to enter into body. Hence you can understand how important is gut health. I'm sure, sir, everyone there's a buzz about gut health. Masses want to know what is gut health. How would we just say gut health को कैसे हम easily explain करें to people understand what they should eat, not eat, or gut health actually में what can it lead to? Even though gut health and these good bacteria in start even you haven't born, once you're inside you're in your mother, and these bacteria start growing, and this where you belong, and everything what you eat, what kind of stress level you have, that decide the strength of good bacteria. So in the mother's womb, what stress she's taking will decide the bacteria in the child. To some extent. And particularly once you develop and become adulthood, then it also, once they're full blown up in what actually had their initial phase, the first these bacteria start developing, and then they come to their strength. They have so many significant number, you can say there are trillions of bacteria, even though more than 10 times of your human cells, and they are good bacteria. But once this bacteria and the form, there are some composition, good bacteria, bad bacteria, even there is some composition has been already developed, and then once you start taking stress, you are trying to change your diet, and you are affected by some disease, and even then you can have a derangement in these composition, and then sometimes the bad bacteria can overlead this good bacteria. Even though there has been a study which says if there is change in your bacterial flora in your gut can lead to the IBS, diabetes, fatty liver, even the liver cirrhosis. And there are some data regarding fecal microbiota has been used in the various diseases, including the liver failure. To treat these. Liver failure. So these gut health is very important. You can see that so many these bacteria are composed of some immune cells. They are most strong immune system in your body. What everything is checked by them. I read an article which said if gut health is not good, you would get autoimmune diseases. Definitely. So we really have to think about it. Autoimmune is equal to gut health. Can we have some light on it? Autoimmunity, because this is the gut immunity is the most strong immunity in your body. It itself is the most strong immune system in body. If there is any derangement in this system, and then body try to develop some kind of autoimmunity, and this autoimmunity may lead to some kind of thyroid problem. So it is done by us actually. We are sabotaging the good bacteria, right? Yeah. And then it is leading to thyroid and... There are multiple problems. There are so many auto diseases which can affect each and every organ. Start from the liver, kidney, brain, and the musculoskeletal system. So hence we need to always keep good bacteria in tummy. It's very important not to have a huge amount of money, but at least you should have a good bacteria in your tummy. Of course, I would agree to that. Because health is everything, and then you understand if you are in good health, then you can do whatever you want to do. But your health is not good, then you never feel good despite having so many things. So when we talk about gut health, I wanted to ask, if I have a patient in the OPD and they're asking me what are the signs of bad gut health, how do I know my gut health is getting now hampered, and how do I fix it? So क्या signs रहेंगे? If you are feeling low, you're feeling low energy, you are not going, you're just feeling fatigued, tired, that means the bacteria are not able to give you good energy. Then bacteria is equal to good energy and good mental. Yeah. Okay. And then you have some kind of symptoms like a bloating, some kind of discomfort in your tummy, change in your bowel habit, like sometimes you feel constipated, sometimes feel you diarrhea. You might have some deficiency of some like iron deficiency, vitamin B12 deficiency,
and there's some other vitamin and fats. So all the vitamins are also linked to gut health. Yeah, definitely. Because here the thing where the absorption happens, small intestine, where the all absorption has been taken place. Now, can you imagine in the upcoming time there is a device is made that if you are going to alter the duodenal mucosa, and then you can treat the diabetes without any drug and insulins. This is the Revita devices has been developed, and then we are going to ablate the duodenal mucosa, and then once ablate the diseased duodenal mucosa, when there is a regrowth of normal mucosa, your diabetes disappear and your blood sugar level, everything become to normal level. This is being happen, and there are so many studies, and this will be come in the clinical practice very soon. So it's the power of gut health that you could actually treat a chronic disease like diabetes. Obesity, because there are this gut health maintain the balance of incretins and anti-incretins. You must be knowing there are hormone incretins and incretins. If there is an imbalance between these hormones, that is the key pathology behind the any obese person obesity. Hence, obesity is totally linked to your gut health. So I think obesity is rising everywhere. It is rising, and there is so much buzz about it. But I think we'll talk later about that. Let's have some more information on gut health. And then, so in India, actually, a lot of patients are coming to our OPD, or we get phone calls from our relatives even. कि I have a lot of bloating. मैंने इतना सा junk food खाया weekend पे, and there's a lot of bloating. So can we have something more on this? Bloating, because there is some change in our lifestyle. Now we are totally shifted from the initially high complex carbohydrate and then some kind of fruits and all to junk food and then some fried item, because they are very good in taste, but they doesn't give any kind of energy to build. That's they called as junk food, because from there you are not going to get energy, not going to get a protein, not able to get some kind of important macronutrient from them. Hence, and they're destroying the good bacteria as well. They also try to make you imbalance. They also create an imbalance, because what you eat, and then the proportion of the good bacteria can be decreases. And then sometimes the bloating can be caused by the overgrowth of the bad bacteria that we call as a small intestinal bacterial overgrowth. And then these overgrowth they produce more of bad gases. Bad gases. Then that give rise to bloating, and sometimes they can also feel as excess flatulence that you call as farting. Because if your carbohydrate doesn't get absorbed to the small intestine, these unabsorbed carbohydrates goes to the colon, where they ferment by some bacteria, because the colon is dated by so many bacteria, around the trillions of bacteria in the colon. Colon has the most strong number of the bacteria, and then they produce like a gas like a carbon dioxide, nitrogen, methane, and then 80% of these gases expel, and then and then 20% expel. That's why they have this farting going on with the bloating. Yeah, the 20% expel by the breath. So once they expel these there's gases, a bad odor. That lead to the bad odor. Even though we can measure these gases, and then we can confirm that their you have to note this down. You can measure it. Because we can also measure, and then we can confirm that you are suffering from small intestinal bacterial overgrowth. Then there's some evidence that if you give us some kind of antibiotic for some days, and then that will rebalance your composition of good bacteria and the bad bacteria, and then you start eating some kind of good food. So there's a role of probiotic even with the antibiotic, I think. You should not mix a probiotic with antibiotic. First you give antibiotic to kill the bad bacteria. Once you again a good composition of good bacteria, then you start supplementing these good bacteria. True that. And there are always difference. There are difference between the probiotic and prebiotic. Probiotic is a good bacteria. Prebiotic is the food that give rise to the good bacteria. So you give in both, you get both of them. Yeah. And I wanted to ask, people just ask me every now and then in the OPD, is farting normal or the non-farting is normal? What's actually okay? There are around 7 to 14 times is okay. If you are being embarrassed in some situation by the excess floating, excess farting, then obviously you should realize that there might be problem in the carbohydrate malabsorption. Excess farting because of carbohydrate malabsorption that I told you, because unabsorbed carbohydrate goes to colon. Produce the gases and the farting will. Yeah. And what about non-farting? Non-farting, if you have some kind of obstruction in your small intestine, your large intestine. That's a major issue. If you have
there problem in the motility of the colon and the small intestine that can lead to the less. That we have seen in the emergency department. Yeah, Patient coming in with So that it is also some kind of emergency condition. You can, because the normally gas forms, if not going to pass, then it start accumulating in your tummy and then give rise to some kind of discomfort. You might have a vomiting, you might pain, and even the obstruction, and such situation becomes aggravated and becomes such emergent condition that you need to attend to some kind of. So you're trying to say this bloating and there is non-farting, there must be something happening. Yeah. You need to really visit a gastroenterologist or a hospital to know what's happening. There might be obstruction in your gut. Thank you so much on that. I really wanted to ask people coming in the OPD or relatives and friends, they ask about affordable superfoods to maintain your gut health. Because we are eating carb, we are eating protein. What are the superfoods to actually maintain your gut health? For my feeling, the superfood are the probiotic food. What kind of probiotic food? They're usually found in the vegetarian. Like a probiotic food, you can say paneer, you can say curd, fermentation, yogurt, and don't forget about this fermented food. Like what you eat, idli, dosa. There's so much of probiotic, and then some fruit like a banana. So you should always try to take this probiotic food. That will rebalance your gut health, yes, and it will give you energy and keep you away from any problem like some diseases. These are the good probiotic superfoods actually we Yeah. can do. So you have to note this down and you have to make it a routine to have these in your lifestyle. Yeah, thank you so much on that. Sir, actually जब भी OPD में या ICU में पेशेंट देखते हैं, we always see हर ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन से एक तरह का कनेक्शन है, राइट? कि मैंने देखा है हार्ट डिजीज के पेशेंट को फैटी लिवर जरूर आता है और फैटी लिवर आजकल पूरे इंडिया में फैला हुआ है. हर पेशेंट मुझे कॉल करके बोल रहा है मुझे ग्रेड 2 हो गया है, मुझे ग्रेड 1 हो गया है, मैं मर जाऊंगा तो मेरा लिवर खराब हो जाएगा. आई थिंक लिवर के ऊपर लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं एंड एज अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड अ लिवर स्पेशलिस्ट यू कैन एक्चुअली टेल देम कि हम अब क्या करना चाहिए. हिंदी में बताते हैं. यदि आपकी बॉडी या टमी में फेट होगा तो ये जायज सी बात है कि आपके लीवर में भी फेट होगा. तो आप जो खाते हैं उसका कम पोर्शन लीवर में जाता है. जैसे आपने फैटी डाइट ली, ऐसा नहीं वो इमीडिएटली लीवर में जाके सारा फैट डिपोजिट होता है. वो आपका बॉडी में डिपोजिट होता है जहाँ की एडिपोज टिश्यू होते हैं, जैसे कि आपकी टमी. जो टमी से जो फ्री फैटी एसिड निकल के लीवर में जाता है, तो जब ये लीवर में फ्री फैटी एसिड जाता है इनका ऑक्सीडेशन होता है. जिनका ये ऑक्सीडेशन होने के बाद में यदि ये ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है उसको सेचुरेट करते हैं तो दे स्टार्ट डिपोजिटिंग. Oh my God, so this is happening. हाँ, ये बहुत दिनों से हो रहा है. हाँ, ये फिर वहाँ जैसे डिपॉजिट होने लगता है, फिर ये इसके अंदर ये दे स्टार्ट टू सिंथेसाइज ट्राइग्लिसराइड. तो ट्राइग्लिसराइड्स के ऊपर वहाँ से जो लीवर से जो ट्राइग्लिसराइड दे लीक एज ए VLDL. जो VLDL है, It's the bad cholesterol. very We have to lose. VLDL is not bad, it's the worst. तो VLDL जब हम लिपिड प्रोफाइल में देखते हैं सर, पेशेंट को भी समझ आ जाना चाहिए कि वो बुरा ही है. हाँ, तो ये VLDL कहाँ जाता है? It goes to the coronary. और तो it causes heart attack. ना, तो you need to understand कि सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है. Even though I can say कि यदि आपको फैटी लीवर है, तो फैटी लीवर होने के बाद में you can have इंसुलिन रेजिस्टेंस. इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो क्यों इंसुलिन रेजिस्टेंस आ गया फैटी लीवर के अंदर? क्योंकि इंसुलिन की एक फिक्स अमाउंट है वो नॉर्मल बॉडी का जो ग्लूकोज है उसको मेंटेन करने के लिए. इन प्रेजेंस ऑफ फैटी लीवर, पेंक्रियाज हैज टू सीक्रेट more amount of insulin to achieve a normal level of blood glucose. It gives rise to the strain on pancreas, and then chronic strain on pancreas can lead to diabetes. So I can say अपने पैंक्रियास को इतना स्ट्रेन कर दिया टेस्ट की वजह से, this is happening. I can say diabetes, heart disease, they are liver disease. तो सब कुछ गट में ही हो रहा है. सब कुछ गट और लीवर, तो सारी बीमारियों की जड़ आपका गट एंड लीवर है. तो इसीलिए तो हम बोलते हैं लीवर को, लीवर एक हमारी बॉडी का इंजन है. तो यदि आप अपने इंजन को सही रखोगे गाड़ी के अंदर तो गाड़ी ऑब्वियसली अच्छे से चलेगी. तो आपको अपना जो लीवर है उसको स्ट्रॉन्ग रखना है. और फिर आप ये जो अल्ट्रासाउंड में ग्रेड 1 ग्रेड 2 देख रहे हैं ना, बहुत बहुत दुखी हैं लोग. ये तो काफी, जब आपका अल्ट्रासाउंड में आ रहा है 30% अमाउंट ऑफ फैट जब होता है तब जाके अल्ट्रासाउंड पिक करता है. तो ये जो अल्ट्रासाउंड में जो आ रहा है वो तो काफी लेट आ रहा है.
उससे पहले ही आपको उसको ठीक करना है। आजकल तो आप ये देख सकते हो कि लोग पतले हैं लेकिन दे आर कहते हैं फैटी पतले लिवर। लोगों को भी फैटी लिवर है, मैंने तो ये भी देखा है आजकल। हाँ, बिकॉज बॉडी में उनको टमी में उनको फैट है, दे आर थिन, ओवरऑल उनका जो मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम है वो थिन है, लेकिन आपको उनके टमी में फैट है, लीवर में फैट है, बिकॉज ऑफ चेंज इन लाइफस्टाइल, कंजम्पशन ऑफ फ्राइड फूड, आई थिंक बैठे रहते हैं, lack of physical activity, some significant stress, and then this give rise to this you can say lean, we call it a leanness. Oh my god, so there is a word to it which is leanness. आजकल this term has been replaced by the lean method, because initially हम इसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज बोलते थे, लेकिन अभी इसका जो रिसेंटली है इसको बोला गया है मेटाबॉलिक एसोसिएटेड लीवर डिजीज। तो यू आर ये मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है। हाँ, यू आर मेटाबॉलिकली अनहेल्दी। ओहो, तो योर मेटाबॉलिज्म मोटा होना या पतला होना भी नहीं है, आप क्या खा रहे हो बहुत इम्पोर्टेंट। खा रहे हो और उसको आप कैसे मेटाबोलाइज कर पा रहे हो। एक्चुअली आप बैठे हो, आप एक्सरसाइज तो मेटाबोलाइज अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो यू आर मेटाबॉलिकली अनहेल्दी। दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड, ये इसी की वजह से लोगों को इतना फैटी लिवर है, क्योंकि वो खा बहुत अच्छा रहे हैं बट उसको मेटाबोलाइज नहीं कर रहे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोगों को इस पे तो बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। सर एक चीज़ मुझे जाननी थी, मतलब एवरी नाउ एंड देन न्यूट्रिशनिस्ट के साथ जब भी बैठते हैं हम लोग, ये डिस्कशन हमेशा होता है कि इंडिया में ही औरतें इतनी ओवरवेट क्यों है, क्यों ओवरवेटिज्म इतना इंडिया में ही ज़्यादा क्यों है, ऐसा क्या प्रॉब्लम इंडिया में ही है कि यहाँ पे औरतें आफ्टर 30s दे नॉट एबल टू शेड द वेट? Because of sedentary lifestyle, एक तो उनकी lifestyle, there are some taboo, they are not going to do some significant exercises, and उनके जो घर पे रह के जो they usually take a high carb meal like रोटी चपाती, और वहीं तो उनकी एक तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पा रही है और हाई कार्ब जा रहा है और एक्सरसाइज कर नहीं रही है बिल्कुल भी। हाँ, और उनके अंदर के फीमेल देयर सम प्रॉब्लम यूजुअली ओनली इन द फीमेल, लाइक सम हार्मोनल चेंजेस, पीसीओएस की प्रॉब्लम हो गई, इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम हो गई, इनको डायबिटीज भी नहीं है बट दे हैव स्टिल हैव इंसुलिन रेजिस्टेंट बिकॉज ऑफ पीसीओएस। सर पीसीओएस तो इतना छोटा टॉपिक था हमारे बुक्स में, लेकिन आज ओपीडी में भरा हुआ है, इट्स अलार्मिंग। और देयर आर सम हार्मोनल चेंज, एक बार उनको प्रेगनेंसी हुई, उन्होंने फिर काफी वेट गेन कर लिया, उसके बाद में दे नॉट एबल टू शेड देयर वेट, तो ये फीमेल में थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन अब देयर आर थिंग्स हैव बीन चेंजिंग। The females usually came out from their home and now you can see them in the gym and then they are doing exercise and they are also. But अभी भी proportion काफी है। Yeah, but still I can say, but we are little bit changing. अब मैं देख रही हूँ कि हाँ 30 के बाद लड़कियाँ बदल रही है, they are trying to change their lifestyle to that. But still अभी भी बहुत बड़ा proportion है जो obese है। सर हमें नींद के बारे में क्या बात करनी चाहिए? मैंने सुना है, मैं टेकी फ्रेंड से बात कर रही थी अपने, तो वो मुझे बोल रहा था कि यार मेरे को ना वैसे तो नींद मिलती नहीं है पूरे वीक में, मैं वीकेंड पे थोड़ी बहुत नींद लेता हूँ। तो नींद का गट हेल्थ से कोई रिलेशन है हमारे डाइजेशन से? तो स्लीप है, दिस इज द स्लीप के जो टाइम है ना, आपकी बॉडी जो अपने आप को रिपेयर करती है ना, वो स्लीप के टाइम करती है। अब अगर कोई मशीन है, आप उसको लगातार चला रहे हो, उसको कोई रेस्ट नहीं दे रहे हो, तो फिर वो जो उतनी जो उसकी एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी। हो सकता है कि इमीडिएट वो करता रहे, स्ट्रेस में मशीन को हम 2 दिन रेस्ट दे देंगे तो वो पूरा नहीं होगा ना। हाँ, तो ज्यादा भी रेस्ट नहीं देना, ऐसा नहीं कि आप लगातार ही 5 दिन तक सो जा रहे हो, लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो एक ना जो आपने बोला है एडेक्वेट स्लीप जो है ना 6 to 8 वो आपको रखना है। जो बॉडी ने एक सर्काडियन रिदम बनाई है ना कि आपको गट को या बॉडी को गुड हेल्थ में रखने के लिए, तो वो आपको मेंटेन करके रखना है। आई थिंक कि 6 to 8 आवर्स स्लीप इज कंपल्सरी फॉर एवरीवन। एंड वो क्या कर रहे हैं ना, उस नींद को वीकेंड पे संडे पे कर रहे हैं, पर डाइजेशन तो 5 दिन से चल रहा है ना, तो फिर वो हमारे पास आ रहे हैं। शिफ्ट की आप ऐसा तो नहीं कर सकते। आप जस्ट आप ये बताइए कि आप 5 दिन का खाना एक बार में खा सकते हैं ना? नहीं खा सकते। हाँ, तो आप 5 दिन की नींद एक बार में नहीं ले सकते, वो आप कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा। आप उस टाइम काम कर रहे हैं बट योर माइंड इज नॉट विथ यू, योर बॉडी इज नॉट विथ यू। हाँ, क्योंकि पेट ठीक नहीं है तो माइंड भी ठीक नहीं है ना। आप ऑब्वियसली आपको ठीक नींद नहीं आ रही, आपको ऐसा कंपल्शन है काम करना है, आपको देयर आर सम सिग्नल्स आपको दिए जा रहे हैं काम करने के लिए, बट आप सोए नहीं हो, तो आप अच्छे से नहीं कर पा रहे काम, आप बॉडी आपको अलाउ नहीं करी, फिर भी आप कम कर रहे हो। तो वहाँ पे हमें नींद को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। बिल्कुल और हमें समझना चाहिए कि हमारा डाइजेशन इफेक्ट हो जाएगा उससे। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर किसी के लिए कॉन्स्टिपेशन, इट्स अ बिग वर्ड नाउ, कॉन्स्टिपेशन अलग अलग तरीके से यूज हो रहा है।
कोई कहता है कि मैंने लेटरिन की लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि मतलब मैं ठीक हूँ कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन ओपीडी में आते हैं। एजुकेटेड लोग भी आ रहे हैं जो बोल रहे हैं हमें लगता है वी हैव अर्ज टू गो टू वॉशरूम बट वी आर नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड अबाउट इट। सो कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है राइट नाउ, क्या बोलना चाहते हो? कॉन्स्टिपेशन बहुत ही वेग टर्म है। कॉन्स्टिपेशन की जो धारणा है अलग अलग कुछ बोलते हैं कि मैं 10 बार जा रहा हूँ फिर स्टिल आई फील कॉन्स्टिपेटेड। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैं एक बार में गया लेकिन मेरा साफ नहीं हुआ, उसको कॉन्स्टिपेशन। कुछ लोगों को एक सप्ताह में हुआ नहीं तो वो बोल रहे हैं कॉन्स्टिपेशन। कुछ लोग बोल रहे हैं आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम कॉन्स्टिपेटेड। तो कॉन्स्टिपेशन का जो टर्म है लोगों ने अपने हिसाब से उसकी डेफिनेशन बनाई है, लेकिन जो आपके अंदर लिटरेचर के अंदर डेफिनेशन है उसके अंदर यह है कि कंसिस्टेंसी को ज्यादा वेट दिया गया है। यदि आपको स्टूल हार्ड आ रहे हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन है। फ्रीक्वेंसी डजंट मैटर। फ्रीक्वेंसी में क्या है कि इंडिया में फ्रीक्वेंसी अलग है, वेस्टर्न में अलग है, हर जगह अलग है। फ्रीक्वेंसी का ऐसे होता है कि आपका एक होती है अर्ज। जब आपका स्टूल रेक्टम में आया तो रेक्टम उसको सेंस करता है, रेक्टम में आते हैं तो आपको अर्ज होती है, मतलब मुझे जाना है। हाँ, तो मतलब आपका जो प्रोसेस है बॉडी का वो ठीक है, डाइजेशन का, वहां तक उसने स्टूल रेक्टम में ला दिया, डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रेक्टम में आने के बाद में फिर एक प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसको हम डेफिकेटरी रिफ्लक्स बोलते हैं। एक प्रोसेस है जिसके अंदर रेक्टम में जैसे आता है, रेक्टम उसको स्टूल को सेंस करता है और रेक्टम स्टूल को पुश करता है। जो पुश करने के साथ साथ में जो एनल स्फिंक्टर होता है वो खुलता है। दो तरह के स्फिंक्टर होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। वो जब दोनों स्फिंक्टर खुलते हैं तब जाके यू कैन हैव ए फ्रूटफुल बाउल मूवमेंट। लेकिन जैसे ही कभी कभी कुछ लोगों में रेक्टम जैसे उसको पुश कर रहा है वो स्फिंक्टर पूरा नहीं खुल रहा है या खुलने की जगह कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है, तो वो बार-बार तो आप उसको नहीं निकल पा रहा उसको, तो वो उसको फील करते हैं कि यार मुझे जाने की इच्छा हो रही है लेकिन मैं जाता हूँ तो होता नहीं है। तो ये इज नॉट अ कॉन्स्टिपेशन। इसके लिए स्पेसिफिक टर्म है पेल्विक डिसिनर्जिया और डेफिकेटरी डिसऑर्डर। इसके 4 टाइप होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 1 के अंदर रेक्टम पुश कर रहा है लेकिन स्फिंक्टर खुलने की जगह बंद हो रहा है। टाइप 2 के अंदर रेक्टम पुश ठीक से नहीं कर पा रहा और स्फिंक्टर भी खुल नहीं रहा। टाइप 3 के अंदर स्फिंक्टर कम रिलैक्स हो रहा है और रेक्टम भी उसको पुश कर पा रहा है। और टाइप 4 के अंदर रेक्टम भी पुश नहीं कर पा रहा और स्फिंक्टर भी पूरा रिलैक्स नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम एनोरेक्टल मैनोमेट्री का टेस्ट करते हैं जिससे हम इनको कैटेगराइज करते हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है, यहाँ ट्रीटमेंट लेग्जेटिव नहीं है, यहाँ आपके स्फिंक्टर को ट्रेन करना है। इसके लिए जो ट्रीटमेंट होता है बायोफीडबैक थेरेपी होती है। तो थेरेपी से हम ट्रेन करते हैं कि आपके स्फिंक्टर को जो किस टाइम पे उसको खोलना है, उसको किस टाइम पे रिलैक्स करना है, किस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करना है। मार्केट में जो चूर्ण आते हैं और जो लोग लेफ्ट एंड राइट स्टूल को लेते रहते हैं कि हमें ठीक से वॉशरूम नहीं हो रहा है, वो तो गलती है ना। मतलब उन चूर्ण में प्रॉब्लम क्या होता है कि आज सुबह ही मैंने कोलोनोस्कोपी की, उसमें मैंने देखा कि उसकी जो बड़ी आंत होती है उसके अंदर की परत पूरी चेंज होती है। फिर मैंने उस पेशेंट से पूछा कि आप क्या लेते थे, कि मैं बाहर से 10 साल से पेट सफा खा रहा था, त्रिफला खा रहा था, ये सब खा रहा था, मतलब पूरी लाइनिंग खराब कर दी। तो आपको ये समझना चाहिए कि इनके अंदर एक सेना होता है। जो सेना होता है ये क्या करता है कि आपके जो कोलन की जो न्यूरॉन्स होते हैं वहां जाके डिपॉजिट होने लगते हैं ये, है ना। तो ये इसकी वजह से आपको मेलेनोसिस कोलाई हो जाता है, जो आपकी जो इंटेस्टाइन होती है, जो उसका जो फंक्शन है वो अफेक्ट हो जाता है। तो क्रोनिक ओवर यूज ऑफ सेना और सच काइंड ऑफ लेग्जेटिव शुड बी डिस्करेज, कि जिससे क्या है कि आपको इमीडिएट तो रिलीफ मिल जाएगा लेकिन आपको आगे ना फिर कोई दूसरा लेग्जेटिव भी काम नहीं करेगा और आपको जो इसके जो साइड इफेक्ट है वो भी ज्यादा होंगे। तो मतलब ये इन्होंने सोचा शॉर्टकट है कि हम चूर्ण ले लेंगे अभी आ जाएगा, लेकिन वो शॉर्टकट नहीं है। बेसिकली वो तो आपका पूरा इंटेस्टाइन ही खराब कर देगा। देखो लेग्जेटिव में बहुत सारे होते हैं, कुछ लेग्जेटिव होते हैं स्टिमुलेंट, जिसमें मैंने बताया सेना आ गया, बिसाकोडिल आ गया। तो ये जो है ना आपको इनका रेस्पॉन्स इमीडिएट होता है, आपको 3 से 6 घंटे या 6 से 8 घंटे में काम करेंगे, लेकिन इनके ओवरऑल साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं। दूसरे होते हैं ऑस्मोटिक। ऑस्मोटिक क्या करते हैं, आपके जो इंटेस्टाइन जो फूड है उसको लुब्रिकेट करते हैं, जो वाटर है उसको ऑब्जर्व करते हैं बिकॉज ऑफ देयर ऑस्मोटिक इफेक्ट। तो उससे क्या है कि वाटर उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर विल स्टे इनटू द इंटेस्टाइन, जो आप स्टूल है वो लुब्रिकेट ज्यादा होगा, वो इजीली पास हो जाएगा। तो यदि और ऑस्मोटिक का ये फायदा होता है कि यदि आपको स्टूल हार्ड हो रहा है तो दे कैन आल्सो सॉफ्टन योर स्टूल। तो ये आपको जज करना है कि कब कौन सा लेग्जेटिव लेना है कब। तो ऑलवेज हैव ए मीटिंग विद योर गैस्ट्रो। अपने आप जो चूर्ण ले रहे हैं उसकी प्रॉब्लम है, हाँ, दैट शुड बी डिस्करेज बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड सिम्टम्स। प्रॉब्लम कहाँ है, कि कोलोन की ट्रांजिट में प्रॉब्लम है या फिर डेफिकेशन रिफ्लक्स में प्रॉब्लम है, स्फिंक्टर में प्रॉब्लम है, माल ऑब्जॉर्प्शन है,
या कोलन स्टिमुलेट नहीं हो पा रही है, क्या प्रॉब्लम वो और ये अपने आप नहीं समझ सकते सर, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको डिटेल डिस्कशन करना पड़ेगा। इस बात को आपको लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि गट हेल्थ इज एक्चुअली एवरीथिंग। इसके लिए मैं आपको 4 बातों की जानकारी दूंगा। यदि आपको लगता है कि आप स्टूल जा रहे हैं फिर भी एक बार में साफ नहीं हो रहा, आप घंटों घंटों तक टॉयलेट में बैठे हुए हैं, आप बहुत जोर लगा रहे हैं, और यदि आपको कभी कभी स्टूल को निकालने के लिए फिंगर की आवश्यकता पड़ रही है, तो ये कॉन्स्टिपेशन नहीं है, ये टेल्पिक डिससिनर्जिया है और इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ही जरूरी है। आपको इसके लिए मैनोमेट्री करवानी चाहिए, और कभी कभी हम MR डेफिग्राफी भी करते हैं, उसमें ये मालूम करते हैं कि वहाँ कोई रेक्टोसील तो नहीं बन गया है। तो ये आपको ये टोटली कॉन्स्टिपेशन से अलग है, आप इसको कॉन्स्टिपेशन लेबल ना करके ये अलग चीज़ है, इसके लिए अलग टेस्ट है, उसको आइडेंटिफाई करना है, फिर उसका ट्रीटमेंट करना है। ओके, आई थिंक हम लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे देश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इज वेट गेन, ओबेसिटी, मोटा होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है। आप क्या बोलना चाहते हो? मोटापा, ओबेसिटी, लोग इसको समझते हैं कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नहीं, एक डिजीज है। ये अपने आप में एक बीमारी नहीं, बल्कि एक ऐसी बीमारी है जो कि दूसरी करीब 100 से भी अधिक बीमारियों को जन्म देती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, ओबेसिटी इज ए डिजीज, नॉट लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। इसको लिए एक पैरामीटर होता है जिसको हम बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, BMI। यदि आपका वेट कितना है, आपकी हाइट कितनी है, उसके आधार पर इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि ये 25 से 30 है तो इसको हम ओवरवेट बोलते हैं। यदि ये 30 से 35 है, क्लास 1 ओबेसिटी। 35 से 40 क्लास 2 ओबेसिटी। यदि ये 40 से ऊपर है तो क्लास 3 ओबेसिटी। आप ये बात करते हैं कि डाइट और एक्सरसाइज से सिर्फ आप 3 से 5% वेट लॉस कर सकते हैं। इससे ज्यादा यदि आपको वेट लॉस चाहिए तो आपको कुछ और तरीके से वेट लॉस करना होता है। तो इसके लिए देखो, सारा वेट जो कंट्रोल हो रहा है, बॉडी के अंदर जो हार्मोन है, जो आपका एपेटाइट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो पेट होता है उसके अंदर एक ग्रेलिन हार्मोन होता है, वो एपेटाइट हार्मोन, उसके आधार पर आपको भूख लगती है। यदि आप कब खाते हो, आप कितने टाइम तक, आपको 4-5 दिन से कभी भूख नहीं लगती तो भी आप नहीं खा रहे हो, आप एक ही दिन में इतनी भूख लगी आप 10 बार खा रहे हो, तो ये डिपेंड करता है। तो ये सारा हार्मोनल ड्राइवर, ये भी हमारे पेट से ही हमें पता चल रहा है। हाँ, ये ग्रेलिन जो हार्मोन है पेट के ऊपरी सिरे से सीक्रेट होता है, ये आपकी एपेटाइट को स्टिमुलेट करता है, उसके आधार पर आप खाना खाते हैं। तो अभी कह रहे हो कि ग्रेविल पे भी काम करना चाहिए, इस हार्मोन पे काम करना पड़ेगा। जितनी भी आपकी वेट लॉस थेरेपी बनी हुई है, जैसे कि आप बोलते हैं सर्जिकली, जिसको हम स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी बोलते हैं, कुछ मेटाबॉलिक सर्जरी, सारा मैकेनिज्म सिर्फ यहाँ स्टोमक पे ही काम करता है। तो ये ऐसे लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा मोटे हैं, मतलब नहीं ठीक हो सकते, उसके लिए आपने सबसे पहले ट्राई किया, आपने एक्सरसाइज की, आपने डाइटरी लाइफस्टाइल चेंज करके देखा, आपने देखा कि आपको वेट गेन, वेट सिग्निफिकेंट वेट लॉस नहीं हो रहा। तो बेसिकली क्या, ओबेसिटी का एक विशियस साइकिल होता है। क्या एक आपको ओबेस होने के बाद में एक तो आप लिथार्जिक हो पाते हो, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते, भी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं है, तो आप उस साइकिल में ट्रैप हो जाते हो। तो आपको सबसे पहले साइकिल को ब्रेक करना होता है। उसके लिए आपको किसी भी तरीके से वेट लॉस करना होता है, उसकी स्टार्टिंग करनी होती है। एक बार स्टार्टिंग हो जाएगी तो फिर बॉडी में एनर्जी धीरे धीरे आने लगती है, और आपको एक थोड़ा सा वो भी मिलता है कि नहीं यार, मेरा वेट लॉस हो सकता है, मैं इसको और कर सकता हूँ। तो उसके वजन कम करने के लिए अब दूसरी और चीजें भी आ चुकी हैं जिससे हम कर सकते हैं। तो वजन कम करने के लिए एक सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि नहीं, मुझे किसी भी हालत में अपना वजन कम करके ही रहना है। यदि आपका डिटर्मिनेशन नहीं हुआ, यदि कोई कुछ भी किया गया, तो उसको फिर वो रीगेन भी हो जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू डिटरमाइन। देखो अब क्या है, हम देखते हैं, हम लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं। लीवर ट्रांसप्लांट में हम देखते हैं जब हमें डोनर की आवश्यकता होती है, फैमिली में इतने सारे लोग हैं लेकिन कोई भी डोनेट नहीं कर पाता, क्योंकि फिट नहीं होता, क्यों फिट इसलिए नहीं रहा, उनके लीवर में फैट है। तो सबसे पहले हम उनको डिटरमाइन करते हैं, और हमने देखा गया है कि इस डिटरमिनेशन से वो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वेट लॉस कर लेते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि बचाने के आधार पर। इसलिए डिटरमिनेशन इज बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल हमारे एंडोस्कोपी की कुछ टेक्निक है, इसके आधार पर भी वेट लॉस किया जा सकता है। जैसे कि हम पेट के अंदर एक बलून का इम्प्लांटेशन कर देते हैं, जिससे कि आपका जो ग्रेलिन हार्मोन है वो रिलीज नहीं होता, आपको भूख नहीं लगती है, और पेट में हमेशा फील होता रहता है कि आपको कि खाना वहाँ है। तो इसके माध्यम से आपको वेट लॉस होता है, इससे सिग्निफिकेंट वेट लॉस होता है। न्यूट्रिशनल लॉस तो नहीं होगा सर? इससे न्यूट्रिशनल बेसिकली जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट वो सिग्निफिकेंटली नहीं कम होता बॉडी ओवरऑल, क्योंकि बॉडी, यदि आप एक गुड हेल्थ में हो
आपको कोई ऐसी कोई लीवर की डिजीज नहीं है, कुछ नहीं है, तो बॉडी अलग सोर्स से मेटाबोलाइज करती है। आप देखते हो ना, जिन पेशेंट को जैसे लीवर, आपको यदि ग्लूकोज चाहिए तो ग्लूकोनियोजेनेसिस से सबको ग्लूकोज मिल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। ग्लाइकोलाइसिस तो से मतलब आपको कह फैट टूटेगा लिवर हाँ, से yes. और उन्हें सब कुछ हाँ, तो मिलेगा। अब वेट लॉस का फायदा ना केवल सिर्फ वजन में है, इससे दूसरी बीमारियां भी ठीक होती है, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज ठीक हो रही है, ऑस्टियोआर्थराइटिस ठीक हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। हमने बहुत सारे ओबेस ऐसे पेशेंट देखे जो रात भर सो नहीं पाते, स्नोरिंग करते हैं, उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, हाइपोक्सिया हो रहा है। तो आप वेट लॉस करने से ना केवल आप ओबेसिटी को ट्रीट कर रहे हैं, ओबेसिटी से होने वाली कॉम्प्लिकेशन का भी इलाज कर रहे हैं। तो सिग्निफिकेंट वेट लॉस जरूर करना चाहिए आपका। ये बलून थेरेपी आप किस पेशेंट के लिए कहना चाहते हैं? जिनका क्लास 2, क्लास 1, क्लास 2, जिनका BMI 30 to 40 है, उसके लिए। पर बलून के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि 500 हम इसको स्टार्टिंग से हाफ केजी से इन्फ्लेट करते हैं, तो उससे हमेशा उनको ब्लोटिंग नोशिया रहता है। आजकल एक नई टेक्निक आई है जिसको हम बोलते हैं एंडोस्कोपिक स्लीप गैस्ट्रोप्लास्टी। रिसेंटली हमने अभी 2 पेशेंट में की भी है, और उसके अंदर क्या है कि आपका जो स्टोमक इट्स लाइक ए बैग लाइक स्ट्रक्चर, काफी सिग्निफिकेंट, उसको हम ट्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि जिसमें कोई चीरा नहीं लगता बॉडी के अंदर। ये कंप्लीटली एंडोस्कोपिक किया जाता है और ये मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर है, जिससे कि नेक्स्ट डे पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। करने के बाद थोड़ा सा पेन होता है, वो कि इजीली मैनेजेबल होता है। नोशिया के लिए कुछ दवाइयां दी जाती है, बाद में आपको एक डाइट प्लान दिया जाता है। इससे क्या होता है, जो आपका पेट का आकार है वो काफी छोटा हो गया। दूसरा, जो आपका फंडस है जहाँ से ग्रेनिन हार्मोन निकल, वो स्ट्रेच हो गया। उसके स्ट्रेच होने की वजह से वहां से ग्रेनिन निकलना कम हो गया और आपकी स्टोमक की कैपेसिटी कम हो गई। मतलब भूख भी कम लग रही है और कैपेसिटी भी हाँ, कम, तो ओवर ईटिंग नहीं कर पाओगे। हाँ, ओवर के ईटिंग भी काफी कम हो जाती है। और इससे सिग्निफिकेंट, हमने एक पेशेंट का किया था, उसका 1 वीक के अंदर 20 kg उसने वेट लूज किया 1 वीक के अंदर। 20 kg, तो ऐसे लोग हाँ, जिनकी घुटने भी खराब हो गए, वो उसका 185 था, विद इन अ वीक 20 kg कम हुआ आफ्टर दिस एंडोस्कोपिक स्लीप गैस्ट्रोप्लास्टी। मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा हर एक को करानी है, लेकिन आपका ये है कि आपका यदि BMI क्लास 3 ओबेसिटी, जिनका BMI 40 से ऊपर है और एक्सरसाइज आप कर नहीं पा रहे हो, 40 से ऊपर, वो इतने मोटे को उनके लिए एक्सरसाइज कितना कम कर पाएगी, नहीं कम कर पाएगी। तो आपको अपने आप में आइडेंटिफाई करना है कि आपको किस क्लास में आप फिट बैठ रहे हो और आपके लिए कौन सा। यदि आपके लिए एक्सरसाइज लाइफस्टाइल, आप बॉर्डर लाइन पे हो, आप ओवरवेट हो, क्लास 1 ओबेसिटी, नो प्रॉब्लम, यू कैन गो विद एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी रिस्ट्रिक्शन। बट यदि आपकी जो क्लास 3 ओबेसिटी, क्लास 4 ओबेसिटी, उसमें आपको कुछ यू नीड सम काइंड ऑफ इंटरवेंशन, बिकॉज आपको ये बीमारी ओबेसिटी को ट्रीट करना है। इसके अलावा इससे होने वाली दूसरी बीमारी से भी निजात पानी, ये जड़ तो निकालनी। आजकल कुछ दवाइयां भी ऐसी आ गई जिनसे भी वेट लॉस किया जा सकता है। जैसे कि कुछ ऐसे हार्मोनल मेडिसिन आ गए जिससे कि गैस्ट्रोपैरेसिस हो जाता है, आपका फूड वही स्टे करता है, उसकी वजह से भी वेट लॉस होता है। सर, बहुत ज्यादा आजकल चर्चा में है कि गट हेल्थ है, पेट कैसे ठीक रह सकता है, पेट के बारे में बात करना चाहते हैं। एक्चुअली में गट हेल्थ है क्या चीज? देखो, इसको साधारण भाषा में गट हेल्थ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपके पेट के अंदर एक मैजिकल फैक्ट्री है। जैसे फैक्ट्री प्रोसेस करती है ना, ये आपके फूड को प्रोसेस करती है, और जो प्रोसेस फूड से आपको एनर्जी मिलती है, और फिर ये इससे अब्जॉर्प्शन होता है, यू गेट मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, ये सारी चीजें। इसके अलावा गट जो हेल्थ है ना, आपकी सबसे बॉडी का स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम है। आप कुछ भी खाते हैं, हर एक चीज को यहाँ से होके ट्रेवल करना चाहिए होता है। तो ये वाला पार्ट यदि स्ट्रॉन्ग रहेगी, यहाँ की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो ओवरऑल बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो आप किसी बीमारी से बच सकते हैं। यदि आपकी गट हेल्थ गुड है, आपका वहाँ जो इम्यून सिस्टम है वो वर्किंग है, तो मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर पेट बिल्कुल ठीक है तो ओवरऑल बॉडी बिल्कुल ठीक है। यस, क्योंकि यहीं से हर एक चीज की भी यहीं से शुरुआत होती है। डायबिटीज की भी यहीं से शुरुआत है, फैटी लीवर की भी यहीं से शुरुआत है, हार्ट डिजीज की भी यहीं से शुरुआत है, स्ट्रोक की भी यहीं से शुरुआत है। तो सारी शुरुआत यहीं से हो रही, तो ये शुरुआती रास्ता है। तो ये इसको आपको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, यहाँ की इम्यूनिटी को बराबर रखना पड़ेगा, गट हेल्थ को ठीक रखना पड़ेगा। कैसे रख सकते हैं हम इसको ठीक? इसको ठीक करने के लिए देखो, आपकी गट के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, यू कैन से ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। इन बैक्टीरिया की संख्या इतनी ज्यादा होती है, जो आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उसके भी 10 गुना ये बैक्टीरिया होते हैं। और इसके अंदर इनका कंपोजिशन ऐसे होता है कि गुड बैक्टीरिया के नंबर्स जो ना बैड बैक्टीरिया से काफी ज्यादा होते हैं। तो हमेशा ये गुड बैक्टीरिया से फायदा होता है, ये एक तो आपको एनर्जी देते हैं और ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो जो भी आप खा रहे हैं, जो भी आपके अंदर, क्योंकि कुछ भी खा रहे तो हो सकता है उसमें कुछ पैथोजेंस हो, कुछ बैक्टीरिया हो, कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स हो, कुछ हार्मफुल पार्टिकल, तो उन सबको ये चेक करते हैं। ये एक चेक पॉइंट है। तो इस चेक पॉइंट पे भी हमने जो बुरी चीज को रोक ली,
तो बॉडी की इंटरी नहीं होगी, बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। पर ये मर जाएंगे ना उसकी वजह से। हाँ, ये कभी कभी कुछ कारणों की वजह से, जैसे आपने कुछ भी खाया, इवन दो आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, आपका स्ट्रेस लेवल क्या है, आप वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन हैं, आपकी एज कितनी है, हर एक चीज पे ये डिपेंड करता है कि ये जो गुड बैक्टीरिया कंपोजिशन क्या हो। ब्रॉड बात में बात करें तो 4 तरह के होते हैं मेन, जो उसके अंदर था फर्मिक्यूटिस बैक्टीरिया होता है, जिसके अंदर आप कहते हैं बिफिडोबैक्टीरियम, जो जितनी भी आप प्रोबायोटिक देखते हैं उसके अंदर आता है। हर प्रोबायोटिक हाँ, तो बिफिडोबैक्टीरियम आ रहा है। तो ये जो आपकी बॉडी को ना गुड बैक्टीरिया जो रिप्लेस हो गए बैड बैक्टीरिया से, उनको आउट नंबर करता है, तो वापस प्रोबायोटिक आपकी जो गट हेल्थ को रीस्टोर करने में हेल्पफुल रहती है। तो इस वजह से यदि आपकी गट हेल्थ ठीक नहीं है तो यू कैन फील मेंटल हेल्थ भी ठीक नहीं होगी। यू विल ऑलवेज फील लो एनर्जी, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आपको थकावट हो रही है, बार बार आप मतलब आपकी किसी चीज कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है, सम टाइम यू फील एक डिस्कम्फर्ट, पेट में भारीपन हो रहा है, और आपकी जो बाउल हैबिट्स है, कभी आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी डायरिया हो रहा है, कभी खून की कमी हो रही है, हीमोग्लोबिन कम हो गया, विटामिन B12 कम। खून की कमी इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। मुझे लगता है कि इसका रिलेशन भी गट से ही है। देखो, आप खून की कमी को ऐसा समझते थे, कोई भी चीज कम है आपकी, या तो उसका प्रोडक्शन कम है या वो कहीं से लॉस हो रहा है उसका। तो यदि हीमोग्लोबिन जो बनता है, यदि बोन मैरो आपके नहीं बना रही, आरबीसी वहाँ है, तो उसकी वजह से होता है। लेकिन अधिकतर का इसका लॉस, जिसके जो कारणों में देखा गया है, जो नंबर है, ये देखा ही यदि आपको खून की कमी हो रही है तो ये अधिकतर लॉस की वजह से होती है, ब्लड लॉस हो रहा है। तो ब्लड लॉस का जो कारण दिखा है, अधिकतर ये ब्लड लॉस जीआई ब्लड लॉस होता है। तो आपको मालूम नहीं चलता कि यदि मतलब ये सब कुछ पेट में ही हो रहा है हमारे एक्चुअली। हाँ, जो पेट के अंदर इनर लाइनिंग है, वहाँ कोई इन्फेक्शन की वजह से सोर बन गया है, जहाँ से आरबीसी और हीमोग्लोबिन लीक हो रहा है। लेकिन वो इस इतनी स्लो स्पीड पे लीक होता है कि आपके जो स्टूल है उसमें भी मालूम नहीं चलता, नेट डाई से विजिबल नहीं होता वो ब्लड। उसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक टेस्ट करने पड़ते हैं, फीकल, ओपल ब्लड, तब जाके मालूम चलता है कि ये जो ओपल ब्लड आपको धीरे धीरे लॉस हो रहा है। और कभी कभी क्या होता है, कुछ जैसे विटामिन होते हैं, विटामिन B12 होता है, तो विटामिन का बहुत बस है। तो विटामिन क्या, वेजिटेरियन जो होते हैं, वेजिटेरियन में आपके जो B12 पार्ट, अधिकतर B12 आपने बात करें तो जितने भी नॉन वेजिटेरियन डाइट में ये अच्छा खासा होता है, लेकिन वेजिटेरियन डाइट में केवल मिल्क और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ही अधिकतर होता है। यदि वो भी आप नहीं ले रहे हो तो ऑब्वियसली आपको विटामिन B12 की कमी हो जाएगी। तो विटामिन B12 की जब कमी होगी, जो आरबीसी का टर्नओवर है, आप ये देखना पड़ता है कि जो आपकी हीमोग्लोबिन जो बना रहे, एक आरबीसी की साइकिल होती है, तो ये उसमें जो एक्चुअली में हमें फ्यूल चाहिए, जो चीजें चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, तो आरबीसी का प्रीमेच्योर डिस्ट्रक्शन होगा। तो उसकी वजह से आप देखते हैं, मतलब खा तो रहे हैं, लोगों को लग रहा है वो खाना खा रहे हैं, बट ठीक नहीं लग रहा, तो उसकी प्रीमेच्योर डिस्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, एक तो आपका हीमोग्लोबिन कम होगा और आपका बिलिरुबिन बढ़ेगा। आपको लगेगा कि यार मुझे पीलिया हो रहा है, ये हो रहा है, अरे पीलिया नहीं है, ये आपकी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। मैं आपको बताऊं, मेरे पास कितने पेशेंट आते हैं जिनका हीमोग्लोबिन 4 होता है, मैं सिर्फ उनका एक सीबीसी कराता हूँ, उसमें देखते हैं एमसीवी हाई है नहीं, एमसीवी जैसे ही हाई मालूम चलता है तो हम सस्पेक्ट करते हैं यार इनको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी। 3 इंजेक्शन के बाद विटामिन B12 आपने चेक कराया, यदि वो कम आता है, आपने इंजेक्शन दिए। ये ध्यान रखना है कि जब आपका ना, इन लोगों को आप ओरली विटामिन B12 देंगे तो अब्जॉर्ब नहीं होगा, इसलिए आपको इनको आईएम देना, इंट्रामस्कुलर देना या आईवी देना है, तब जाके विटामिन B12 अब्जॉर्ब होगा। आप रिजल्ट देख सकते हैं विदाउट गिविंग। मतलब ये नोट करने की बात है, अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो आईवी ही लेना पड़ेगा आपको, ओरल से कुछ नहीं। आप ये देख सकते हैं कि 4-5 इंजेक्शन के बाद विदाउट गिविंग एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन उनका 4 से 7 हीमोग्लोबिन पहुंच जाता है, और कुछ दिन के बाद देखने में बिकम एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो उनको ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ मैजिक हो गया। तो इसलिए हम एक्चुअली पेट की प्रॉब्लम को ध्यान नहीं देते, हम सीधा दूसरी चीजों पे कूद जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो पेट से संबंधित प्रॉब्लम है, आपको क्या करना है, थोड़ा अवेयरनेस रखनी पड़ेगी। पेट से रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स है उसको आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है। यदि आपको लो फील हो रहा है, आपकी बाउल हैबिट्स में कुछ परिवर्तन है, आपको ब्लोटिंग फील हो रही है, तो आपको पेट दर्द हो रहा है, आपका हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, तो आपको उसको इवेल्युएट करना है। उसको इवेल्युएशन में जो भी निकलता है उसका ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि आपको शुरुआती स्टेज के अंदर किसी बीमारी को अनदेखा कर देंगे तो बीमारी आगे बढ़ती जाएगी। यदि किसी बीमारी को अर्ली स्टेज में ट्रीट करें तो इसके रिजल्ट अच्छे होते हैं। तो अभी तो हमने ये बात की कि पेट की परेशानी की वजह से न्यूट्रिशन कम हो गया है, और न्यूट्रिशन की वजह से हमें खून की कमी हो रही है। खून तो चढ़ा लोगे, लेकिन जो न्यूट्रिशन कम हो रहा है, पेट खराब है, उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। तो आपको इसी के लिए गैस्ट्रो वालों से जरूर बात करनी चाहिए, बहुत जरूरी चीज़ है, अपने यहाँ कुछ नहीं करना चाहिए, राइट। आई थिंक इंडिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एवरी अदर पेशेंट या एवरी अदर पर्सन इज टेलिंग कि भाई मेरा पेट बहुत फूलता रहता है, मेरा पेट बिल्कुल फूलता रहता है, कुछ भी खा लूँ
वीकेंड पे मैंने एक थोड़ा सा फ्राइज खा लिए तो पेट फूल गया, फोन आता है रात में कि पेट फूल गया, दर्द हो रहा है, सीवियर दर्द हो रहा है, क्या नहीं। तो मतलब ये एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में बात कर सकते हैं। इससे पहले जैसे आपने मुझे बताया कि आप जैसे हीमोग्लोबिन कम हो रहा है उसको रिप्लेस तो कर रहे हैं आप, लेकिन आपने नहीं ये क्यों कम हो रहा है उसको नहीं समझा। तो ये देखो हीमोग्लोबिन क्यों कम हो रहा है, विटामिन क्यों अब्जॉर्ब नहीं हो, तो ये एक प्रॉब्लम है माल अब्जॉर्प्शन। तो हाँ, मतलब आपका जो अब्जॉर्प्शन है, आपका डाइजेशन ठीक नहीं है। देखो दो टर्म होते हैं, एक माल अब्जॉर्प्शन होता है, एक माल डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप जो फूड पार्टिकल ले रहे हैं उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना ताकि वो इजीली अब्जॉर्ब हो जाए। तो यदि इस प्रोसेस में गड़बड़ी होती है तो इसको माल डाइजेशन बोलते हैं, और इस प्रोसेस के बाद में यदि अब्जॉर्प्शन में गड़बड़ी होती है तो उसको माल अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो दोनों डिफरेंट टर्म है। माल डाइजेशन का जो मेन कारण होता है वो पेंक्रियाज की इनसफिशिएंसी होता है, क्योंकि जो पेंक्रियाज में एंजाइम निकलते हैं वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट तीनों को डाइजेस्ट करते हैं। यदि वहां से नहीं निकल पा रहे हैं वो एंजाइम या उनकी मात्रा कम हो रही है तो आपको इनका इनडाइजेशन हो सकता है। तो ऐसे में पेशेंट क्या करेंगे, दे विल कंप्लेन ऑफ लार्ज अमाउंट, मतलब उनका ऑयली स्टूल आएगा, उनको विटामिन B12 की कमी हो जाएगी, उनको डायरिया होने लगेगा। तो बिकॉज आपका फैट अब्सॉर्ब नहीं हो रहा और फिर वो फैट एक्सक्रीट हो रहा है स्टूल के अंदर। तो ये साइन, तो ऑयली स्टूल का साइन क्या होगा सर, कैसे पता चलेगा ऑयली स्टूल है? They will literally complain कि once they will go to the washroom they will see the oily stool। जैसा कभी-कभी they can also चिपक जाता है। हाँ, चिपक भी जाएगा। उसके अलावा they can also notice oil। ऑयल भी होगा। हाँ, ऑयल, आपको ऑयली स्टूल दिखेगा। तो हमारा जो पूप है, मतलब हाँ, जो हम जाते हैं वो हमें बहुत कुछ पता है। हाँ, that will give so much info, कलर भी इंफॉर्मेशन देता है, उसकी कंसिस्टेंसी भी इंफॉर्म देती है। यदि आपको कार्बोहाइड्रेट माल अब्जॉर्प्शन होगा तो इट विल बी बल्की स्टूल एंड द फाउल स्मेलिंग स्टूल एंड द स्टिकी स्टूल, ऑयली स्टूल। और ये आपको ध्यान रखना है कि यदि पैंक्रियाटिक एंजाइम, आपका पैंक्रियाज यदि 10% भी एंजाइम निकाल पा रहा है तो दैट विल बी सफिशिएंट टू डाइजेस्ट। यदि वो इतना कम हो गया कि आपको ऑयली स्टूल आ रहा है, मतलब उसकी जो क्वांटिटी है वो काफी सिग्निफिकेंटली, मतलब काफी पैंक्रियाज पे स्ट्रेन है, इवन दो पैंक्रियाज इज नॉट एबल टू सीक्रेट एटलीस्ट 10% ऑफ एंजाइम, इतना कम मतलब वो जो बिल्कुल खत्म हो जाता है तब जाके ये सिम्टम्स आएंगे। इसलिए जब भी जो साइन आते हैं, जो सिम्टम्स काफी, हाँ, लेट स्टेज होती है, इसको इसलिए अर्ली स्टेज में आपको पिक करना चाहिए। अर्ली स्टेज में आपको थोड़ी थकावट होगी, सारी चीजें होगी। जो आप ब्लोटिंग की बात करें, ब्लोटिंग का मतलब क्या है कि खाना खाने के बाद में पेट का फूल। कुछ लोग बोलते हैं जैसे मैंने थोड़ा खाया मेरा पेट फूल गया, मैं बाकी खाना नहीं ले पा रहा। तो पेट क्यों फूल रहा है कि कोई भी होलो ऑर्गन है उसके अंदर यदि गैस ट्रैप होगी तो वो खींचने लगेगा। तो ये आपके अंदर के जो बैक्टीरिया, दे आर प्रोड्यूसिंग मोर गैस, जो गैस ज्यादा बढ़ रही है उसकी वजह से वहां खिंचाव हो रहा है। तो जो नॉर्मल फ्लोरा, जैसे अपन ने पहले बात की थी कि एक कंपोजिशन है गुड एंड बैक्टीरिया की, ये कंपोजिशन बिगड़ गया और बैड बैक्टीरिया के नंबर ज्यादा हो गए, उन्होंने ज्यादा गैस प्रोड्यूस की, ज्यादा गैस पेट में इकट्ठी हो गई, आपको ब्लोटिंग फील होने लगी। तो ये सब हमारे खाने से तो कनेक्टेड है। यस, फिर आप उस ब्लोटिंग के साथ साथ आपको लूज मोशन हुए। तो ये है ये साइन है स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। कभी कभी आपकी जो स्टोमक में भी आपको ये जान के विचित्र बात है कि आप लोगों को भी जानकारी नहीं हो कि जैसे हार्ट में पेसमेकर होता है, स्टोमक में भी पेसमेकर होता है। हाँ, जैसे ही आपका खाना वहां जाता है, स्टोमक का पहला जो ऊपरी सिरा है वो खुलता है, फिर ये पेसमेकर खाने को सेंस करता है, फिर पेसमेकर एक रिदमिक मूवमेंट स्टार्ट होती है स्टोमक के, जिसको हम प्रोसेस को चर्निंग प्रोसेस बोलते हैं, जिसके अंदर इस चर्न के द्वारा आपके जो बड़े बड़े फूड पार्टिकल हैं छोटे छोटे फूड पार्टिकल में कन्वर्ट होते हैं, फिर वो एक काइम के रूप में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, वहां से एब्जॉर्प्शन होता है। यदि आपका ये पेसमेकर ढंग से काम नहीं कर रहा है और आपका पेट खाने के बाद में बराबर नहीं खुल रहा तो आपको ब्लोटिंग हो सकती है। ऐसे समझ सकते हैं कि आप छोटी थैली है, उसमें आपने लगातार पानी डाल दिया, तो वो यदि थैली में जो खिंचाव महसूस हो रहा है तो वो खिंचाव कुछ पेशेंट को ब्लोटिंग के रूप में फील मतलब होता है। खाना आगे जा ही नहीं रहा है ठीक से, इसलिए। और कुछ पेशेंट को क्या होता है, एक विशेष तरह की बीमारी होती है कि फंक्शनल गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, जो लोगों में इसके बारे में जानकारी नहीं है। इसके अंदर आपको पेट में रुकावट तो नहीं है, लेकिन जब आप खाना खा रहे हैं तो जो आगे का सिरा है पेट का, जहां से जिस रास्ते से इस खाने को छोटी आंत में जाना होता है, वो स्पाज्म में चला जाता है। वो स्पाज्म में जाने की वजह से आपका लंबे टाइम तक खाना पेट में इकट्ठा नहीं लगता है। पर यदि खाना ये पेट में इकट्ठा रहेगा तो पेट पे जो स्ट्रेस रिसेप्टर्स है उनको एक्टिवेट करेगा और आपको ब्लोटिंग फील होगी। मतलब पेट भरा भरा सा लगेगा, लेकिन खाया आपने कुछ नहीं। हाँ, यस, नहीं खाया, जो पुराना खाया वो भी आपको फील हो रहा है, मतलब और कुछ नहीं खा पा रहे हो ना। हाँ, उसके अभाव में आप नहीं ले पा रहे। और यदि किसी कारणों की वजह से गैस्ट्रोपेरेसिस, यदि पेसमेकर के नंबर्स आपको कम है
जो इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कहाल से उनके नंबर्स कम है तो पेट की मूवमेंट कम हो जाएगी, मूवमेंट कम होने की वजह से भी खाना आगे नहीं जाएगा तो आपको ब्लोटिंग फील होने लगेगी। तो समटाइम्स क्या होता है, जो ब्लोटिंग है ना, ये आपको साइन होते हैं गैस्ट्रोपेरेसिस के लिए, पर आप इसको सिर्फ इंडाइजेशन समझते हैं और एक बड़ी बीमारी जैसे गैस्ट्रोपेरेसिस उसको नेग्लेक्ट करते हैं। जब आपको बार बार उल्टी होने लगती है तब जाके आप सोचते हैं कि यार नहीं हमें जाना चाहिए, तो ये गैस्ट्रोपेरेसिस भी हो सकता है ब्लोटिंग, ऐसा नहीं कि सिंपल इंडाइजेशन है। तो गेस्ट आप ये कुछ आपने देखा हो कुछ फीमेल्स के अंदर बार बार वो उल्टी करती हैं ना, वो क्यों उल्टी करती है? उनका पेट जो उन्होंने खाया पुराना खाना वहीं रुका हुआ है। तो पहले इस लोगों को अच्छा नहीं लगा। हाँ, पहले लोग इसको बुलिमिया नर्वोसा बोलते थे, लेकिन नाउ इट कैन बी कंसीडर्ड कि ये दिस इज प्रॉब्लम इन द स्टोमक, या तो उनको गैस्ट्रोपेरेसिस है या उनको पाइलोर स्पाज्म हो सकता है। तो इसके लिए विशेष तरह का टेस्ट कर सकते हैं, जैसे हार्ट के लिए ईसीजी होती है, यहाँ टेस्ट होता है इलेक्ट्रोगैस्ट्रोग्राफी। इस प्रक्रिया में जैसे ईसीजी की तरह इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं ना, यहाँ इसके अंदर इलेक्ट्रोड की पोजीशन अलग होती है और इसके अंदर लेकिन इसके अंदर ये होता है कि जो स्टोमक की जो रेट है वो काफी लो होती है, तो उसको हम पहले एम्पलीफाई करते हैं फिर रिकॉर्ड करते हैं, इससे हमें सारी जानकारी मिलती है कि आपको कहाँ पे हो सकती है सर? ये हाँ इट्स वेरी सिंपल टेस्ट ना, कि जैसे ईसीजी की मशीन होती है, जैसे मूवेबल मशीन, और इससे हम इट्स आल्सो अवेलेबल इन माय क्लिनिक एज वेल। तो हम वहाँ और इसके अंदर एक पहले हम खाली पेट करते हैं, फिर आपको पानी पिलाते हैं, फिर करते हैं, तो हम इससे समझ सकते हैं कि आपका स्टोमक का पेसमेकर ठीक काम कर रहा है नहीं कर रहा, और स्टोमक में जो आपकी कोई अबनॉर्मल मूवमेंट तो नहीं है, पाइलोर स्पाज्म तो नहीं है, और मतलब किसी का पेट फूल जाना या खाना खाने के बाद भरा भरा रहना नॉर्मल भी नहीं हो सकता है कि इनडाइजेशन भी, तो किसी बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बता सकते हैं। देख कभी कभी क्या होता है कि आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ, आपको कुछ सोर थ्रोट हुआ, कोई भी वायरल इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद भी एक पोस्ट वायरल गैस्ट्रोपेरेसिस होता है। हाँ, तो उसकी वजह से भी आपको ये फीलिंग आ सकती है, लेकिन वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चला जाता है। कुछ मेडिसिन आपको गैस्ट्रोपेरेसिस कर सकती है, कुछ इनहेरेंट प्रॉब्लम आपको कर सकती है, ऑटोइम्यून प्रॉब्लम कर सकती है, कुछ सर्जरी के बाद में गैस्ट्रोपेरेसिस हो सकता है। सर्जरी के बाद में पहले के टाइम में बिलोर्थ ऑपरेशन या पेप्टिक अल्सर के काफी ऑपरेशन होते थे, किसी जो हाइटस हर्निया फंडोप्लाइकेशन सर्जरी के बाद में, क्योंकि जो पाइलोर खोलता है वो वेगस नर्व खोलती है, तो वेगस नर्व में कोई भी इंजरी हुई किसी सर्जरी के दौरान, तो जो पेट का आखिरी पार्ट है वो स्पाज्म में चला जाता है और उनको बार बार में ब्लोटिंग उल्टी वगैरह ये फील होती है। तो मतलब अगर किसी को भी उल्टी हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, बस आपको दिखाना है। ये हम डॉक्टर का काम है कि उसको क्या टेस्ट करके किस तरीके से आपकी प्रॉब्लम देखेंगे ना, बात करके समझ में आएगा कि हम, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है कि ये नॉर्मल नहीं है, आपको जरूर इसके लिए एक्शन लेना है, एक बार विजिट करनी है और कुछ नेसेसरी टेस्ट कराना है ताकि बीमारी अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई हो जाए, उसका ट्रीटमेंट हो जाए। सर इसी के ऊपर मुझे एक चीज और पूछनी है कि क्या फार्टिंग मतलब बात आना या फार्ट नहीं आना, इनमें से क्या नॉर्मल और क्या अबनॉर्मल है, और हम क्या डिस्कस करें? फार्टिंग और एक्सेस फ्लैटुलेंस, देख इसके लिए कि पेट में यदि डाइजेशन होगा तो गैस प्रोडक्शन होगा, आपका एक पैसेज है वो बाहर भी निकलेगी, लेकिन यदि उसकी फ्रीक्वेंसी मान के चलते हैं कि आप 7 से 14 बार निकल रही है, 200 ml तक निकल रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि इसके नंबर काफी ज्यादा हो जाए और ये फाउल स्मेलिंग हो जाए, ये अधिकतर इसलिए होती है कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट, जो छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ, तो ये अनअब्जॉर्ब कार्बोहाइड्रेट जैसे ही बड़ी आंत में आते हैं, बड़ी आंत में जो बैक्टीरिया की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है पूरी बॉडी में, और इन बैक्टीरिया से जब इन अनअब्जॉर्ब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है तो इसकी वजह से काफी मात्रा में गैस प्रोड्यूस होती है, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, और ये फ्लैटुलेंस के रूप में बाहर निकलती है। 20% ऑफ दिस गैस आल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू लंग से बाहर आती है ब्रीथ में। तो मतलब किसी को कोई बैड ओडर है या मुंह से गंदी बदबू आ रही है तो उसका भी मतलब है कि पेट खराब है, इंडाइजेशन। पेट के बारे में सोचना चाहिए, नहीं कि ब्रश कर लिया, कुल्ला कर लिया, इसको इंडाइजेशन है। और उसकी अच्छी बात है कि हम उस ब्रीथ में भी हाइड्रोजन लेवल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम उसको टेस्ट करके बता सकते हैं। बता सकते हैं कि आपके इस इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया हैं, अनवांटेड बैक्टीरिया है, दिस इज कॉल्ड एज टर्म एज सीबो, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। यदि इसके नंबर काफी कम हो जाए, आपको 5 दिन से गैस पास ही नहीं हो रही और आपका पेट फूल रहा है, तो ये साइन होते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब आपका जो पैसेज है जहां से गैस को निकलना है वो रुका हुआ है, उसमें कोई रुकावट है। केस आते तो है सर हमारे पास, तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको गैस पास हुई नहीं? हाँ, तो गैस पास नहीं हुई तो इसको भी, ये भी नॉर्मल नहीं है, तो आप इसको भी एज ए सिम्टम्स लेना है। तो नॉट फार्टिंग इज आल्सो अ प्रॉब्लम। यस, तो इसके लिए उसमें आप ये, और कभी कभी ये इमरजेंसी सिचुएशन बन जाता है जिसके लिए आपको एक्सरे या सीटी स्कैन करना पड़ता है। यदि ऑब्स्ट्रक्शन होता है, कभी कभी कुछ केसेस में सर्जरी की आवश्यकता होती है। तो आपको ये गौर करना है
कि यदि आपको 4-5 दिन तक बिल्कुल गैस पास की तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना, और बहुत ज्यादा गंदी गैसेस पास कर रहे हो बार बार तो भी दिखाना दिखाना। तो ये बहुत जरूरी बात है कि हम फाट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या हमें एक्चुअली उनका पेट फूल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है। सर ये तो हमने करी बुरी बातें कि ये बुरा है वो बुरा है। एक्चुअली पेट के लिए, पेट को ठीक रखने के लिए कौन से ऐसे खाना है जो बहुत अच्छा है, या ऐसे कोई सुपर फूड है जो अफोर्डेबल है, जो हमारे पास अवेलेबल है और हम खा सकते हैं? इसमें हम कहीं प्रोबायोटिक फूड आपको देंगे। जैसे आपको एम क्या है कि हमें हमारे इंटेस्टाइन के अंदर गुड बैक्टीरिया को ज्यादा रखना है, तो उसके लिए जो भी प्रोबायोटिक फूड है वो अच्छे हैं। जैसे आप प्रोबायोटिक फूड की बात करें तो दही हो गया, पनीर हो गया, इसके बाद में योगर्ट, ये इसके अंदर काफी अच्छे प्रोबायोटिक कुछ जैसे फ्रूट्स होते हैं, बनाना हो गया, एप्पल हो गया। जैसे एप्पल की बात करें तो ये एप्पल की कहावत, एक आप एप्पल ले रहे हैं तो यू कैन कीप अवे योर ऑल प्रॉब्लम्स, तो जस्ट कीप टेक ए वन एप्पल एंड keep away all the problems. One apple a day keeps the doctor away was a famous saying. Yes. And then some other like these berries are also they are rich in this probiotic food. इसके अलावा some kind of complex carbohydrate and these also good. तो I will consider कि जो probiotic food है ये सबके लिए you can consider them as a super food. इनमें फाइबर भी है और प्रोबायोटिक भी है। तो ये जो डोसा इडली वगैरह है ये भी फर्मेंटेड फूड, इनमें भी काफी जितने फर्मेंटेड फूड है जैसे इडली, डोसा, खमन, पनीर, ये सारे प्रोबायोटिक है। आपको ये हमेशा गुड बैक्टीरिया, तो ये मतलब अफोर्डेबल भी है, हमारे घर में भी है, इन्हें खा के एक्चुअली हम पेट को ठीक रख सकते हैं। यदि आपको डायरिया से रिकवर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आई विल रिकमेंड दीज फूड। किसी को दस्त हो गए, दवाई तो दे दी आपने एंटीबायोटिक, लेकिन उसके बाद में फिर इंस्टेड ऑफ गिविंग द प्रोबायोटिक आई विल आस्क देम कि आप ये ना जो फर्मेंटेड फूड है और जैसे ये फ्रूट है, प्रीबायोटिक फूड है, ये ले लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपका जो गुड बेड और बैक्टीरिया कंपोजिशन वापस रिस्टोर हो जाएगा कुछ दिन के अंदर। बिल्कुल। आई थिंक इसके बाद हमें एक बहुत जरूरी बात के बारे में बात करनी चाहिए। ऐसा होता है कि एक ऑर्गन से दूसरा ऑर्गन कनेक्टेड है, और जैसे कि आपने मुझे बोला कि पेट ही सब चीजों की परेशानी है, तो पेट से क्या क्या हो सकता है? बेसिकली पेट अगर ठीक नहीं है तो सारी बीमारी की शुरुआत यहीं से होती है कि बॉडी की जो इम्यूनिटी की प्रॉब्लम्स है वो भी गट हेल्थ आप कंसीडर तो आजकल ऑटोइम्यून डिजीज तो बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा। हाँ, बिकॉज ऑफ कि आपकी जो गट हेल्थ में है, क्योंकि वहाँ भी एक इम्यून सिस्टम है। तो आप ये कंसीडर कर सकते हैं जो बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम है वो गट में ही है। यदि वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है तो पूरी बॉडी के इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम्स हो रही है। तो जितनी भी ऑटोइम्यून प्रॉब्लम्स है वो भी लिंक्ड है गट इम्यूनिटी से। तो इसके अलावा बात करें कि यदि फैटी लीवर की बात करें जो कि आजकल बहुत ही कॉमन है, तो एक ऑर्गन हर अल्ट्रासाउंड में है सर, ग्रेड 1 फैटी लीवर, ग्रेड 2। एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है। फैटी लीवर मतलब क्या समझते हैं फैटी लीवर से? कुछ और लोग, बहुत सारे पेशेंट हमारे पास में आते हैं, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेके आते हैं, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2, ग्रेड, और डर भी जाते हैं। काफी लोग डर जाते हैं। तो यदि ऑब्वियस की बात है, यदि आपकी टमी के अंदर फेट होगा तो आपके लीवर पे भी फेट होगा, और ये लीवर के अंदर जो फेट है, ये वाला फेट लीवर तक रहे तो लिमिटेड, लेकिन ये फेट के अंदर जो लीवर से इस फेट के साथ में जो VLDL निकलता है ये आपकी धमनियों में जाता है। ये VLDL लिपिड प्रोफाइल में दिखाई देता है, आप लोग को देखना नहीं है। तो VLDL क्या, आप जैसे यहाँ से आप सोचते हैं कि आप जो भी ले रहे हो सीधा जाके लीवर में डिपॉजिट होता है, ऐसा नहीं है। जो लीवर में फेट आता है उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी आपके एडिपोज टिश्यू से आती है, मतलब आपके जो टमी पे फेट है वहां से आती है। तो वो फेट एज ए फ्री फैटी एसिड के रूप में आपके लीवर में जाता है। लीवर में इसका एक बीटा ऑक्सीडेशन होता है जिससे कि ये फ्री फैटी एसिड यूटिलाइज हो जाते हैं, लेकिन वो ऑक्सीडेशन का भी एक फिक्स, जब वो ओवर सैचुरेट होते हैं दे आर गोइंग टू स्टोर। मतलब हमने इतना अपने लाइफस्टाइल को खराब कर दिया कि लिवर बेचारा थक गया। लीवर थक गया, और थकने के बाद में जो फैटी स्टेट वो स्टोरेज का काम करने लग गया। वो आपको फैटी एसिड को स्टोर कर रहा है एज ए ट्राइग्लिसराइड के रूप में, लेकिन उसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी लिमिटेड है, तो ज्यादा स्टोर भी नहीं कर सकता, तो पूरी बॉडी में फैल रहा है। हाँ, तो फिर क्या होगा, लीवर से लीक करेगा यही फैट, और ये लीक करेगा VLDL के रूप में। जब VLDL के रूप में लीक करेगा और ये VLDL जाएगा आपकी जो आर्टरी होती है, हार्ट की जो कोरोनरी होती है, धमनियों में, वहां जाके चिपक जाएगा। वो आर्टरी पहले इतनी छोटी छोटी सी होती है, उसमें चिपक जाएगा तो उसका डायमीटर और कम हो जाएगा, तो आपको हार्ट को प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलेगी और आपको हार्ट अटैक की संभावना बढ़ेगी। तो मतलब पेट की परेशानी से दिल की परेशानी हो गई, और डायबिटीज भी हो सकती है, क्योंकि जिन लोगों को फैटी लीवर है, एक पेंक्रियाज को जितनी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है ब्लड लेवल को नॉर्मल रखने के लिए, उससे ज्यादा इंसुलिन उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी।
पेंक्रियाज को ज्यादा स्ट्रेन रहेगा। यदि स्ट्रेन लगातार लंबे टाइम तक पेंक्रियाज पे रहता है तो पेंक्रियाज एग्जॉस्टेड हो जाएगा, और ये पेंक्रियाज एग्जॉस्टेड हो जाएगा तो फिर शुगर हो रही है, वो भी लाइफस्टाइल का तो इशू है। शुगर, डायबिटीज, फैटी लीवर, डिसलिपिडेमिया, थायराइड, दे आर लिंक टू ईच अदर, और ये सब पेट से ही लिंक है। तो हम अपने स्टार्टिंग में क्या डाल रहे हैं टेस्ट के लिए, वो बहुत जरूरी होता है। तो आपको टेस्ट पे नहीं जाना है, आपको कंटेंट पे जाना है, आपको कैलोरीज पे जाना है, आपको एक्सरसाइज नहीं, फूड की बात कर रहे हैं। जो फूड के आप फूड के आपको टेस्ट पे नहीं जाना, फूड के आपको कंटेंट देखना है, उसमें प्रोटीन कितना है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट नहीं, वेदर दिस इज प्रोबायोटिक फूड और नॉट, तो आपको कंटेंट पे जाना है। देख, बिकॉज whatever food is looking a good taste is not a really good food for you। तो ये आपको कंसिडर करना है कि हमें हमेशा क्या लगता है, जो टंग के लिए अच्छा है बस वो खा लो। We never listen to our gut, we only listen to our tongue। तो हमें टंग की बात कम सुननी है, पेट की बात ज्यादा सुननी है, और लीवर की बात ज्यादा सुननी है। गट फीलिंग इंपॉर्टेंट है, गट फीलिंग एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। तो गट फीलिंग कहती है कि ये खाना पौष्टिक है, पर टेस्ट कहता है ये अच्छा है, पर टेस्ट की नहीं सुननी है। सो इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन के बाद जब हमने बताया है कि पेट कितनी सारी चीज़ों से रिलेटेड है, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी इम्यूनिटी, और ओबेसिटी कितना बड़ा डिजीज है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रोबायोटिक्स कितने इंपॉर्टेंट है। आई थिंक कपिल सर, इट्स टाइम आप इस सेशन को कंक्लूड करो, एक टेक होम मैसेज दो हमारे व्यूअर्स को, सो दे नो कि आज इस पॉडकास्ट के बाद उन्हें क्या अप्लाई करना चाहिए लाइफ में। यू आर बिग gastroenterologist, इट शुड कम फ्रॉम यू। टू कंक्लूड, I would say कि gut health is very important। gut health को good shape में आपको रखना चाहिए, और आपको poor gut health के साइन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप टायर्ड फील कर लें, लो एनर्जी फील कर लें, आपकी बाउल हैबिट में कुछ परिवर्तन हुआ है, पेट में भारीपन है, और आपको कुछ माल ऑब्जॉर्प्शन के साइन, इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, गेट चेक्ड। दूसरी बात करते हैं ओबेसिटी के लिए। जो मोटापा अपने आप में एक बीमारी है, इसको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ना समझें, इसका इलाज करना आवश्यक है। अर्ली स्टेज के अंदर क्लास 1 ओबेसिटी और ओवरवेट के अंदर आप एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हो, बट जैसे ओबेसिटी आगे बढ़ जाती है, क्लास 3 ओबेसिटी हो जाती है, तो वेट लॉस को स्टार्टिंग के लिए आपको अदर मेजर की हेल्प लेनी पड़ेगी, जैसे कि आप बलून इम्प्लांटेशन, आप कुछ मेडिसिन, और सम काइंड ऑफ एंडोस्कोपिक थेरेपी लाइक एंडोस्कोपिक स्लीप गैस्ट्रोप्लास्टी। इनसे क्या स्टार्टिंग में सिग्निफिकेंटली वेट लॉस होता है, और बाद में आप एक्सरसाइज और डाइटरी चेंजेस के आधार पर इस वेट लॉस को मेंटेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन के अंदर। कॉन्स्टिपेशन, हर एक कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। आपको ये समझना पड़ेगा कि कॉन्स्टिपेशन जो लगता है वो एक्चुअली कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। देयर आर सम डिसऑर्डर लाइक ए डेफिकेटरी डिसऑर्डर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यदि आपको बार बार मोशन जाने की हाजत हो रही है, आपका एक बार में स्टूल साफ नहीं हो रहा, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेनिंग करना पड़ रहा है, तो ये रियली में कॉन्स्टिपेशन नहीं है, डेफिकेटरी डिसऑर्डर है। इसके लिए आपको एनोरेक्टल मैनोमेट्री करना चाहिए, और यहाँ ट्रीटमेंट लैक्सेटिव ना होकर यहाँ ट्रीटमेंट है बायोफीडबैक थेरेपी। और आई वुड से, यदि आप गट हेल्थ को रीस्टोर करना चाहते हो, जस्ट टेक हेल्प ऑफ प्रीबायोटिक फूड। दैट्स ऑल अबाउट अवर टुडे डिस्कशन रिगार्डिंग गट हेल्थ। थैंक यू सो मच कपिल सर, आई थिंक इट वाज वेरी इंसाइटफुल। लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आई पेट के बारे में, कि पेट क्या क्या कर सकता है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। Thanks Dr. Tanu for kind invitation. It's really pleasure to be part of this podcast, and it's given so many insight to people's life, है ना सर? Thank you. लोगों की mental thinking बदलनी चाहिए अपने पेट के बारे में, right? That should be it. Thank you so much. Thank you.